Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 10. Today we will discuss exercise 2.3, which is on page number 34. Exercise 2.3, and in the previous lecture we have discussed question number 1. We will start from question number 2. The question is, find the value of k if the sum of the roots of the 2x square plus kx plus 6 is equal to 0 is equal to the product of the roots. इस स्टेटमेंट में आपके पास कंडीशन गिवन है कि सम ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द roots. So we have to find k, which is question mark, के हमने find करना है, and the equation is given 2x square plus kx plus 6 is equal to 0. Now we know that alpha beta are the roots of the quadratic equation, and we have also derived that sum of the roots is equal to minus b by a, and product of the roots is equal to c by a of the quadratic equation. Now the given equation is a quadratic equation, so we will write that alpha plus beta is equal to, what is b? It is k, and what is a? It is the coefficient of x square, which is 2. Similarly, alpha beta is equal to, what is c? It is 6, constant 6 है, और a आपके पास जो है that is 2. अब आप इन कंडीशन के मुताबिक इन दोनों का आपस में इक्वल करेंगे, बिकॉज वी हैव गिवन दैट सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. सो वी विल पुट इट इज़ माइनस k by 2 इज इक्वल टू 6 by 2. अब आप इस 2 को दोनों साइड्स पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 2 आपस में कट जाएंगे, सो यू गेट माइनस k इज इक्वल टू 6, or by multiplying minus on both sides we get k is equal to minus 6, so it is the required value. Now next we have question number 3, which is find the value of k if the sum of the square of the roots x square minus 5kx plus 6k square is equal to 0 is equal to 13. अब यही आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 3 में. इक्वेशन गिवन है आपके पास. सबसे पहले आप इसके लिए सम ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेंगे, विच इज़ इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स इज़ इक्वल टू माइनस b बाई a, सो इट इज़ माइनस 5k डिवाइडेड बाई 1, विच इज़ इक्वल टू माइनस इंटू माइनस वी गेट 5k. Next is the product of the roots, which is equal to c by a, so it is 6k square divided by 1. Now these are the two values. Now we come to the condition that the sum of the square of this equation, the sum of the square of the roots of this equation is equal to 13. So we will write that sum of the square of the roots, ये किसकी इक्वल है? ये 13 के इक्वल है. इट इज़ गिवन इन द स्टेटमेंट. ये आपके पास स्टेटमेंट में गिवन है. अल्फ़ा प्लस बीटा हमने खुद से लिख लिया, और अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 6k स्क्वायर, एंड इट इज़ द गिवन कंडीशन. अब हम क्या करेंगे कि वी नो दैट बाय फार्मूला दैट इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. अब सम ऑफ द रूट्स आपके पास जो है वो आपके पास है 5k, सो वी पुट सम ऑफ द रूट इज़ इक्वल टू 5k स्क्वायर इज़ इक्वल टू, व्हाट इज़ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट? इट इज़ इक्वल टू 13. तो इधर आप 13 पुट कर लेंगे, प्लस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा आपके पास जो है दैट इज़ अ 6k स्क्वायर, सो वी पुट एज 6k स्क्वायर. Now we know that 5k square we get 25k square is equal to 13 and plus 2 into 6, तो 2 into 6 से आपके पास क्या आ जाएगा? 12k square. अब आपके पास जो लाइक टर्म्स हैं वो आपके पास है 25k square एंड 12k square, यानी k square आपके पास लाइक टर्म है, तो आप यू कर लेंगे. दिस इम्प्लाइज दैट 25k square minus 12k square is equal to 13.
we have shifted this 12k square to the left hand side. So we get 25 minus 12, we get 13k square is equal to 13. अब आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है. सो वी विल डिवाइड दिस 13 ऑन बोथ साइड्स. सो वी गेट 13 on both sides. We get 13 by 13. We get 1k square is equal to 1. अब आपने क्वेश्चन में k फाइंड करने, तो यहाँ पर अगर आप देख लें तो k इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और इधर आपके पास आ रहा है k स्क्वेयर इज इक्वल टू 1. सो दैट्स वाई वी विल टेक स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स. व्हेन यू टेक स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स you get k is equal to plus minus 1. So this is the required value of k is equal to plus minus 1. Now we move on to question number 4, which is question number 4 is find the value of k if x square minus 5x plus k is equal to 0 differ by unity. The roots differ by unity. तो इसका क्या मतलब है कि हम यहाँ पर सपोज करेंगे कि अगेन वी हैव अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. तो इधर आपके पास आ जाएगा सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. सो नाउ वी हैव बी इज -5 and a is 1. So we get sum of the roots is equal to 5 by 1, and product of the roots of this equation is equal to c by a, which is k by 1. तो अब आपके पास जो कंडीशन गिवन है कि द रूट्स डिफ़र बाय यूनिटी, यहाँ पर आप दोबारा बुक में देख लें डिफ़र बाय यूनिटी, तो इसका मतलब है कि रूट्स के दरमियान जो डिफरेंस है इट इज़ अ माइनस विच इज़ इक्वल टू 1. सो इट इज़ सपोज दैट इट इज़ इक्वेशन 1 एंड वी हैव अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 and alpha beta is equal to k. So we will compare this alpha minus beta with alpha plus beta. तो इसके नीचे मैं लिख लूँगा alpha plus beta is equal to 5, which is for example it is equation number 2. अब आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि वी कंपेयर और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों कर सकते हैं. तो बाय कंपैरिजन एक आपके पास माइनस बीटा है, दूसरा आपके पास प्लस बीटा है, तो इसके साथ आप लिख लेंगे एडिंग इक्वेशन 1 and 2. जब आप इधर लिख रहे हैं कि एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो ये दोनों आपके पास कट जाएंगे. सो वी गेट 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 + 5 वी गेट 6. अब आप अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करते हैं. सो डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, सो वी गेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 3. यहाँ पर आपके पास जो है अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 3. अब आप ये अल्फ़ा की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, दैट इज़ योर चॉइस. सो वी पुट इन इक्वेशन नंबर 1 फॉर एग्जांपल, वी पुट इट अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फ़ा इज 3 minus beta is equal to 1. So minus beta is equal to 1 minus 3. So we get minus beta is equal to -2. So when you multiply minus on both sides, you get beta is equal to 2. अब आपका नेक्स्ट जो टारगेट है दैट इज़ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के. आपने तो के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपने प्रोसेस इसलिए किया है कि अगर आप देख लें यहाँ पर आपके पास अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू के, यानी हमने अल्फ़ा भी फाइंड किया है और बीटा. अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे यू गेट द वैल्यू ऑफ के. तो इधर आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू के. नाउ वी हैव फाइंड अल्फ़ा इज़ व्हाट, इट इज़ 3. अल्फ़ा इज़ 3. You can see that alpha is equal to 3 and beta is equal to 2. So put alpha is equal to 3 and beta is equal to 2. So in the last we get 3 multiply 2, we get a 6. So k is equal to 6 is equal to k, or we can also write k is equal to 6. It is the required value of k. Again I repeat, we have to find the value of k, and x square minus 5x plus k is equal to 0 was the given equation. So we suppose that alpha beta are the roots. Alpha plus beta is equal to minus b by a, you know that. And similarly the product of the root is equal to alpha beta is equal to k. So
C value is k and A value is a 1. So this was the required solution. Thank you so much. इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में आगे हम 2.4 को डिस्कस करेंगे. अल्लाह हाफिज़.